حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ بھی سلطان عارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا اولیاء میں مقام ایسے ہے جیسے ملائکوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے تو سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچ کر آپ رک گئے، انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور استاد گرامی سے اجازت لے کر گھر آ گئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے دونوں گھروں سے نباہ کرنا مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ میں آپ ہی کا ہو رہوں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ ہی کو سونپ دیجیے کہ میں اسی کا ہو رہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بستام سے نکلے اور 3 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدے کرتے رہے اور تقریباً 170 علماء و مشائخ سے فیوض و برکات حاصل کیے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں جو کچھ ریاضتوں اور مجاہدوں اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں پایا، کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھی، یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر میں زار و قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک کی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے گئے تو دیکھا کہ گھڑے میں پانی نہیں تھا، چنانچہ پانی لینے کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھی۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہیں رکھ دیا؟ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور شاید میں اس وقت حاضر نہ ہوں۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک یہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دخل دیتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نماز دوبارہ ادا کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کو نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر روانہ ہوئے اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اسرار کے ساتھ کہا کہ خدا کو بستام میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ مقتول ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت میں اس درجے غرق رہتے تھے کہ ایک ارادت مند جو 30 سال سے آپ کا خادم بنا ہوا تھا، جب بھی وہ سامنے آتا تو آپ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کے سامنے آتا ہوں آپ نام پوچھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذاق نہیں کرتا، بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہداء کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ ہی آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام و سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ بایزید تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ ایک شب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کوئی چیز موجود ہے کیا؟
चुनाचा अंगूर का एक खोशा निकला तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी को दे दो। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अनवार की बारिश होने लगी और ज़िक्र और रियादत में लज्जत महसूस होने लगी। एक मरतबा एक शख्स हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को आया और जब वापस जाने लगा तो कहने लगा कि मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने अपने क़याम के दौरान मेरा कोई अमल खिलाफ सुन्नत दिखा? तो उस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे बढ़कर और क्या करामत चाहते हो? आप फरमाया करते थे कि मैं सर्दियों की रात में गुदड़ी ओढ़े हुए एक जंगल में सोया हुआ था कि मुझे गुस्ल की हाजत पेश आ गई, लेकिन शिद्दत सर्दी की वजह से मेरे नफ्स में काहिली पैदा हो गई। मगर मैंने भी गुदड़ी ओढ़े हुए यख बस्ता पानी से गुस्ल करके सुबह तक वही भीगी हुई गुदड़ी उस नीयत से ओढ़े रखी कि काहिली के जुर्म में नफ्स को और ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा। एक दफ़ा किसी ने दरियाफ्त किया कि आप भूख की क्यों ज़्यादा तारीफ़ करते हैं? ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर फ़िरौन भूखा होता तो अना रब्बकुमुल आला ना कहता। किसी ने एक ऐसे शख्स को मरने के बाद देखा जो अमाल सालिहा से बहुत दूर था और पूछा कि तेरा क्या हाल है? तो उसने कहा कि अगरचे मैं बहुत गुनाहगार इंसान था मगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछा गया कि किस वजह से बख्शिश हुई? तो जवाब मिला कि एक रोज़ हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह अपने रब के हुजूर दुआ मांग रहे थे और मैंने उनकी दुआ में आमीन कहा, लिहाजा उनकी दुआ की बदौलत मुझे भी बख्श दिया गया। एक मरतबा आप कब्रिस्तान से वापस शहर तशरीफ़ ला रहे थे कि रूसाए शहर का एक बिगड़ा हुआ नौजवान बाजा बजाता चला आ रहा था। आपने उसे देखकर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा। उस रईसज़ादे ने अपना बाजा आपके सर अक़दस पर इस जोर से मारा कि बाजा टूट गया और आपका सर मुबारक भी फट गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त आपने बाजे की कीमत और एक हलवे की प्लेट अपने एक खास मुरीद के हाथ उस नौजवान के पास भेजी और मौजरत की कि कल बाजे के टूटने से उसका नुकसान हो गया है, लिहाजा उस कीमत से नया बाजा खरीद लो और हलवा खाकर कल के गम और गुस्से को फरामोश कर दो। उस नौजवान ने जब ये मामला देखा तो ज़ारो कतार रोता हुआ आपके कदमों से लिपट गया, मौजरत चाही, तौबा की और फिर शर्फ़े बैत से मुशर्रफ हो गया। उसके तमाम साथी भी बैत होकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो गए। एक मरतबा किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपका पीर कौन है? आपने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत। उस शख्स ने पूछा कि वो कैसे? फरमाया कि एक मरतबा मैंने गलबाए शौक में जंगल की राह ली, वहाँ एक बुढ़िया को बोझ उठाए हुए देखा। ये बोझ मुझसे बहुत भारी है, ज़रा इसे उठाना। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं अपने वजूद का बोझ उठाने से कासिर था, उस बुढ़िया का बोझ कैसे तो उठाता। मैंने एक शेर की जानिब इशारा किया, वो करीब आया तो मैंने बुढ़िया का बोझ उस शेर के पुश्त पर रख दिया और बुढ़िया से कहा कि अब तू शहर जाकर क्या बताएगी लोगों को? उस बुढ़िया ने कहा कि मैं कहूँगी कि आज एक जालिम को देखा है मैंने। आपने पूछा कि वो कैसे? बुढ़िया ने मुझसे सवाल किया कि शेर मुकल्लिफ है या गैर मुकल्लिफ? मैंने कहा कि गैर मुकल्लिफ। बुढ़िया ने कहा कि जिसको खुदा तकलीफ न दे और उसको तू तकलीफ दे तो तू जालिम है कि नहीं? मैंने कहा कि जालिम। उस पर बुढ़िया ने कहा कि फिर भी तू चाहता है कि शहर के लोग ये जान लें कि शेर तेरे ताबे है और तू बड़ा साहिब करामत है। फरमाया कि ये सुनकर मैंने तौबा कर ली। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अनोखा वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा सफ़र कर रहा था कि मुझे एक निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद, देर समान की तरफ चले जाओ और यहूदियों के साथ उनके ख़ास त्यौहार में शामिल हो जाओ। मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ी कि शायद ये मेरा वसवसा है। जब रात हुई तो ख्वाब में वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो सोचने लगा कि इस हुक्म की फरमानबरदारी करूं या ना करूं। तो मेरे बातिन से ये निदा आई कि डरो मत। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैं देर समान पहुंचकर यहूदियों की मजलिस में बैठ गया तो क्या देखता हूं कि उनका सबसे बड़ा राहिब आया और मिंबर पर बैठा ही था कि कुछ बयान करे, लेकिन उसकी ज़बान खुल न पाई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं? एक आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज़ आई कि उसे खड़ा करो, हम उसे कत्ल करेंगे। उस राहिब ने कहा कि हम उसे बगैर दलील के कत्ल नहीं करेंगे। मैं इम्तिहान के तौर पर उससे चंद मसाइल पूछ लेता हूँ, अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना उसको कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या जिल्लत। सब ने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम आपके हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा हुआ और पुकारने लगा कि ए मोहम्मदी नौजवान, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खड़ा हो जा ताकि सब लोग आपको देख सकें। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आप अलैह रहमा की ज़बान पर अल्लाह ताला की तकदीस और हम्द के कलमात जारी थे। यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूँगा क्या तू उसका जवाब देगा? बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, जवाब दूंगा।
और बदले में सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम जवाब दोगे? यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं भी जवाब दूंगा। सवालात और जवाबात का सिलसिला कुछ इस तरह से था। यहूदी आलिम ने पूछा कि एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। पूछा कि दो बताओ जिसका तीसरा न हो। फरमाया कि दिन और रात, उसका तीसरा नहीं। पूछा गया कि तीन ऐसे बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया कि लोह कलम कुर्सी तीन हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि चार बताओ जिनका पांचवा न हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार हैं, उनका पांचवा नहीं है। यहूदी आलिम ने पूछा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, 6 नहीं। आलिम ने पूछा कि 6 बताओ जिनका 7वां नहीं। आपने फरमाया कि 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि 7 बताओ जिनका 8वां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, उसका 8वां नहीं है। पूछा गया कि 8 बताओ जिसका 9वां न हो। आपने फरमाया कि मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 9 बताओ जिनका 10 नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पे रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 11 बताओ जिनका 12 नहीं। आपने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। पूछा गया कि वो 12 बताओ जिनका 13 नहीं। आपने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। पूछा गया कि वो 13 बताओ जिनका 14 नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत मूसा का असा, जो अल्लाह की पैदावार है लेकिन खुद ही सवाल किया। यहूदी आलिम ने पूछा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। आपने फरमाया कि एक घोड़ा। फिर पूछा गया कि सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया जुम्मे का दिन। सबसे बेहतरीन रात। फरमाया लैलतुल क़द्र। सबसे बेहतरीन महीना रमज़ानुल मुबारक। पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ताला ने उसकी अजमत का इकरार किया। आपने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मक्कार होने का इकरार किया। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है। वस्सुब्ह इज़ा तनफ्स, मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। फिर पूछा गया कि बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया, उनसे बात की। आपने फरमाया कि 7 ज़मीन, 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए और 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ, और उन 14 के 14 ने कहा कि अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। फिर पूछा गया कि वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे ख़रीद लिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया और उनको ख़रीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आपने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। फिर पूछा गया कि बताओ वो कौन सी खबर है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। आपने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही, वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में न मरने दिया, न भूखा प्यासा रखा, न बीमार किया, न परेशान किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। आपने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को घर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तग़फ़ार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। आलिम ने पूछा कि बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी। आपने फरमाया कि यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इनमें से दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। उस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत हैं मगर वक्त बहुत हो गया है, अब यहीं छोड़ देता हूँ। उस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दे। आपने सवाल किया कि बताओ जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी आलिम खामोश हो गया तो लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं।
तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा कि जनाब मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम मानोगे नहीं। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पता है तो मानते क्यों नहीं। मजमे से आवाज़ आई कि अगर तू कहेगा तो मानेंगे। कहने लगा तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा